Good morning, class. I hope you all are good. Now, today we are going to discuss about plants, our friends. We must have seen beautiful plants in our surroundings. So we can say plants keep our surroundings fresh and beautiful. So let's read about plants in this chapter. So here is our chapter 12, plants are friends. That means plants are our friends. Plants हमारे friends होते हैं. So look at the picture given below. Here, Kiara and her mother are in a beautiful garden. And Kiara's mother said, "Do not pluck the flowers." Then Kiara asked, "Why do you always say that?" आप हमेशा ऐसा क्यों कहती हो कि हमें flowers pluck नहीं करने चाहिए, तोड़ने नहीं चाहिए? Then her mother explained, "They look beautiful on plants and make our surroundings look beautiful." क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर ही सुंदर दिखाई देते हैं और हमारे सराउंडिंग्स को, आसपास के एरियाज को भी ब्यूटीफुल बनाते हैं. Moreover, plants are living beings and they get hurt when we pluck their parts. और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें फ्लावर्स को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो भी हमारी तरह क्या हैं, लिविंग बीइंग्स हैं और उन्हें भी हर्ट होता है जब हम उनके किसी भी पार्ट को प्लक करते हैं, तोड़ते हैं, है ना. जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स को अगर चोट लग जाती है तो हमें क्या होता है, वी गेट हर्ट, है ना, हमें दर्द होता है. तो इसी तरह से प्लांट्स को भी हर्ट होता है. सो वी शुड नॉट प्लक plants or flowers. Now let's start reading the chapter. Come to the first line. Plants are friends because they are very useful to us. Plants हमारे friends होते हैं because ये हमारे लिए बहुत ही useful होते हैं. As we get medicine, paper, wood, clothes from the plants. क्योंकि हमें plants से क्या क्या मिलता है, food, medicine, paper, wood and clothes. So plants keeps our surrounding fresh and beautiful. और plants हमारे आसपास के areas को सुंदर बनाते हैं और fresh रखते हैं. Now, look at the next topic, parts of a plant. We have already read this in class 1, right? Parts of a plant, we have different parts of a plant. First is stem, leaf, root, flower, and fruit. Now, let's read about the functions of these parts of the plant. Stem, it supports the plant. स्टेम का क्या फंक्शन होता है, ये प्लांट को सपोर्ट करके रखता है जिससे कि प्लांट सीधा खड़ा रहता है. देन लीफ, इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट. लीफ जो होते हैं उसका क्या काम है, क्या फंक्शन है, प्लांट के लिए फूड बनाते हैं लीफ. नेक्स्ट है रूट, इट ग्रोज इन द सॉयल एंड फिक्सेस द प्लांट टू द सॉयल. जो रूट्स हैं वो सॉयल के नीचे ग्रो करते हैं, उगते हैं और प्लांट को फिक्स करके रखते हैं. नेक्स्ट इज फ्लावर, इट प्रोड्यूसेस फ्रूट. फ्लावर जो होता है वो फ्रूट बनाता है. ओके, क्योंकि पहले जो फ्लावर होता है उसी में से फ्रूट प्रोड्यूस होता है. एंड द लास्ट इज फ्रूट. फ्रूट हैज सीड्स इनसाइड इट. जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं और सीड जो है वही वापस से न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू that what are the parts of the plants and their functions. Yes, you can see here parts of the plants. This is leaf. This is leaf. Then second is this red part is fruit, fruit of the plant. Then this yellow is flower. This is flower. Then this green part is stem which supports the plant. And the last is which is below the soil, that is roots. So these are different parts of the plant. Our next topic is types of plants. कितने तरह के plants होते हैं इनके बारे में read करेंगे. ये भी हम class 1 में read कर चुके हैं. So let's revise it. There exists a great diversity among plants. Diversity का मतलब होता है varieties, right? तो जो plants में बहुत सारे अलग अलग varieties present होती हैं. They can be of different types such as trees, shrubs,
herbs, climbers and creepers. जो trees plants होते हैं वो अलग अलग types के हो सकते हैं, जैसे कि trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. Now we will read about them one by one. Number one is trees. Plants may be big or small. The big plants are called trees. जो plants होते हैं वो big भी होते हैं और small भी होते हैं. तो जो बिग प्लांट्स होते हैं वो ही क्या होते हैं? ट्रीज. दे हैव वेरी थिक हार्ड वुडी स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक. जो ट्रीज होती हैं इनकी जो स्टेम्स है वो बहुत ही हार्ड होती है, वुडी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? ट्रंक. जैसा कि आपने ट्रीज को देखा होगा, जो उनका स्टेम होता है वो ब्राउन कलर का वुडी स्टेम होता है, राइट, जो बहुत ही हार्ड होता है, उसे क्या कहा जाता है? ट्रंक. Yes, you can see in this picture, this is neem tree. And this part, this is woody hard stem, which is called trunk. So all the trees have a hard stem, woody stem, that is called trunk. And it has long lifespan, जो बहुत ही ज़्यादा time तक live means grow करते हैं, जिंदा रहते हैं. Skin of tree trunk is called bark. जो ट्रीज की ये जो ट्रंक अभी बताया मैंने, उसकी जो स्किन होती है ऊपर की छाल, उसे बोलते हैं बार्क. सम ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज. ट्रीज के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? नीम ट्री, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री एंड बेनियन ट्री. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज. नाउ कम टू shrubs. Small plants which have thin but hard woody stems are called shrubs. जो shrubs होते हैं उनकी stems क्या होती हैं, कैसी होती हैं? Thin means पतली होती हैं but hard होती हैं. Hard और woody stems होती हैं जिन्हें shrubs कहा जाता है. इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? ये कितने टाइम तक के लिए जिंदा रहते हैं? दे लिव फॉर 1 to few years. 1 से कुछ सालों तक ये लिव कर मतलब जिंदा रहते हैं. नेक्स्ट है हिबिस्कस, रोज, बोगनवेलिया एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ श्रब्स. ये हिबिस्कस जैसे प्लांट्स जो आपने फ्लावर देखा होगा, एंड रोज, बोगनवेलिया, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? श्रब्स के. You can see in this picture, this is rose plant. This is rose plant, which is a type of shrub. Rose plant क्या है? Shrub है. इसकी जो स्टेम होती है ये हार्ड होती है, वुडी, बट पतली होती है, थिन होती है. ठीक है, ऐसा आप लोगों ने देखा भी होगा. Now come to the next one. Next is herbs. Very small plants which live for only one season and have very soft green stems are called herbs. जो herbs होते हैं ये बहुत ही छोटे plants होते हैं जो सिर्फ एक season के लिए ही होते हैं. ठीक है, और इनकी जो stems होती है वो बहुत ही soft and green होती है. जैसे कि example mint and coriander, पुदीना जो plant है वो आपने देखा होगा, या धनिया, इनकी जो स्टेम होती है वो ब्राउन नहीं होती, वो ग्रीन होती है, सॉफ्ट होती है. सो दीज आर कॉल्ड herbs. Now you can see in the picture. Yes, here the third picture is of coriander, धनिया. It is a herb. इसकी जो stem है वो brown नहीं होती, ये बहुत ही soft and green stem होती है. So these are called herbs, which are very small plants. Now the next is climbers. Very weak stemmed plants which need some support to grow are called climbers. Climbers क्या होते हैं? बहुत ही ऐसे plants जिनकी stem बहुत weak होती है, उनको कोई ना कोई support चाहिए होता है आगे climb करने के लिए, बढ़ने के लिए. They climb up along a support and spread at heights. कोई support उनको मिल जाए तो उसके ऊपर वो climb means चढ़ जाते हैं और ऊंचाई तक ग्रो करते रहते हैं. जैसे कि मनी प्लांट देखा होगा आपने, ठीक है, उसको सपोर्ट चाहिए होता है. एंड सेम लाइक पी प्लांट. ये दोनों एग्जांपल्स है क्लाइंबर्स के. आप पिक्चर में भी नीचे देख सकते हैं. दिस इज पी प्लांट विच नीड्स सपोर्ट टू ग्रो. इसको सपोर्ट देंगे तो ये हाइट, ऊंचाई तक ग्रो करेगा. Now come to the next one, creepers. These plants also have soft weak stems. Creepers की भी soft और weak stems होती हैं climbers की तरह. They grow, लेकिन जो climbers हैं वो उनको support चाहिए होता है ऊपर बढ़ने के लिए, grow करने के लिए. But जो creepers हैं वो ground के ऊपर ही फैलते हैं, spread on the ground. They bear large fruits. और इनमें जो fruits आते हैं वो बहुत ही heavy होते हैं, large होते हैं. For example, watermelon and pumpkin.
यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज वाटरमेलन। इसका जो फ्रूट है वो बहुत ही हैवी होता है, इसलिए ये जो क्रीपर्स हैं वो ग्राउंड के ऊपर ही क्रीप करते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। सनलाइट, वाटर, सॉयल एंड एयर आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द प्लांट्स बिकॉज दे हेल्प प्लांट्स टू ग्रो। इसमें हमें बताया गया है कि प्लांट्स के कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो कौन कौन है? सनलाइट, वाटर, सॉयल एंड एयर। ये 4 फ्रेंड्स है प्लांट्स के, क्योंकि ये प्लांट को ग्रो करने में, बढ़ने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे फ्रेंड्स क्या है? फूड है ना, एनर्जी गिविंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स। इसी तरह से जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ये सब फूड हमें जो है क्या करते हैं? ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सो दे आर आवर फ्रेंड्स। सेम प्लांट्स के भी 4 फ्रेंड्स है, सनलाइट, वाटर, soil and air, which help them to grow. Every plant requires the right amount of sunlight, water and soil to prepare its food. तो हर प्लांट को राइट अमाउंट में सनलाइट, वाटर और सॉइल की जरूरत होती है। The prepared food is carried by stem to various parts of the plant. अभी पढ़ा था हमने कि जो लीफ है वो फूड बनाती है प्लांट के लिए। तो ये जो फूड है वो स्टेम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। प्लांट स्टोर्स द एक्स्ट्रा फूड इन इट्स स्टेम। जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है? स्टेम में, लीव्स में, रूट्स में, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड सीड्स। Now we will read uses of plants. Yes, first is food. We get cereals, vegetables, fruits, spices, and oil from plants. Plant stores food in its body parts. We eat these parts as food. यहाँ पर हमें बताया गया है कि प्लांट्स जो है सबसे पहला जो इसका यूज है वो क्या है? एज अ फूड, कि प्लांट्स को हम फूड की तरह यूज करते हैं, फूड में, अपने खाने में। प्लांट्स अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स में फूड को स्टोर करके रखते हैं और हम उन बॉडी पार्ट्स को खाते हैं। जैसे कि फर्स्ट है फ्लावर एज फूड। तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स को हम फूड की तरह खाते हैं? दैट इज कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकोली। सो दीज आर 2 फ्लावर्स। ये क्या है? फ्लावर्स होते हैं प्लांट के, जिन्हें हम खाते हैं एज अ वेजिटेबल। देन द नेक्स्ट इज स्टेम एज फूड। हम कई प्लांट्स की स्टेम को खाते हैं एज अ फूड की तरह। जैसे कि जिंजर, अदरक जो होता है वो प्लांट का कौन सा पार्ट है? स्टेम होता है वो, ठीक है। इसी तरह से पोटैटो जो है वो भी एक स्टेम है, ओके। ये सॉइल के अंदर होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रूट्स में काउंट हो, ठीक है। ये क्या है? स्टेम होता है। सो रिमेंबर दैट जिंजर एंड पोटैटो आर स्टेम विच वी ईट एज अ फूड। नेक्स्ट इज लीफ एज अ फूड। कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती है उन्हें हम फूड के रूप में खाते हैं, जैसे कि लेट्यूस, स्पिनच एंड कैबेज। ये सभी क्या होते हैं? प्लांट्स के लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। एंड द नेक्स्ट इज रूट्स एज अ फूड। कुछ ऐसे रूट्स होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, ठीक है, जैसे कि कैरेट एंड रेडिश। कैरेट एंड रेडिश बोथ आर रूट्स ऑफ द प्लांट। ये दोनों क्या हैं? प्लांट के रूट्स होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। सीड एज फूड। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसे हम खाने में यूज करते हैं, जैसे कि पी, मटर जो है वो क्या है? सीड है। देन बीन्स, बीन्स इज ऑल्सो अ सीड। एंड व्हीट, ये तीनों ही क्या है? सीड्स होते हैं। देन नेक्स्ट इज फ्रूट्स एज फूड। और कुछ हम फ्रूट्स जो हैं कंज्यूम करते हैं, जैसे कि एप्पल, मैंगो एंड ग्रेप्स। सो these were some different food items. You can say these were some different parts of the plant which we eat as a food. Now we get nuts from plants. हमें प्लांट से और क्या चीजें मिलती हैं? नट्स, जैसे कि कैश्यू नट्स, काजू, आमंड्स, बादाम, पिस्ताचियोज मीन्स पिस्ता, and walnut, अखरोट. So these are some nuts which we get from plants. Pistachios is pista. Next है we get spices such as turmeric, red chili, cumin, coriander, clove and cardamom from plants. कुछ हमें spices भी प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि टर्मरिक, रेड चिली, क्यूमिन, कोरिएंडर। क्यूमिन मीन्स जीरा, कोरिएंडर सबको पता है धनिया, क्लोव, लौंग,
ठीक है। सो दीज आर सम, और कार्डामम क्या होती है, इलायची, जो मैं लास्ट चैप्टर्स में करवा चुकी हूँ। सो दीज आर सम स्पाइसेस विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, ये हमें स्पाइसेस प्लांट से मिलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन, वी ऑल्सो गेट टी, कॉफी, कोकोआ एंड शुगर फ्रॉम प्लांट्स। हमें प्लांट से और क्या चीजें मिलती हैं, टी, कॉफी एंड कोकोआ। We get oil from seeds of groundnut, coconut, sesame, mustard and sunflower plants. हमें प्लांट से कुछ ऑयल सीड्स भी मिलते हैं जिससे ऑयल बनाया जाता है, जैसे कि ग्राउंड नट मूंगफली, कोकोनट, ठीक है, सेसमे ये क्या होता है, तिल, मस्टर्ड जो सरसों, देन मस्टर्ड जो है वो सनफ्लावर प्लांट से हमें मिलता है। सॉरी, मस्टर्ड जो है वो सरसों का प्लांट होता है। देन सनफ्लावर जो प्लांट होता है इससे हमें ऑयल मिलता है, जो सूरजमुखी का आप फ्लावर देखते हो उसके प्लांट से भी ऑयल निकाला जाता है। वी यूज ऑयल फॉर कुकिंग, हम ऑयल को कुकिंग के लिए यूज करते हैं, एज मेडिसिन एंड फॉर अप्लाइंग ऑन हेयर एंड बॉडी, और मेडिसिन की तरह भी यूज करते हैं और अपने हेयर और बॉडी पर लगाने के लिए भी इसे यूज किया जाता है। सो दीज आर सम ऑयल सीड्स विच वी गेट फ्रॉम plants. Yes. Look at the next page. We have given some oil seeds: groundnut, coconut, mustard, and sunflower. These are 4 different types of oil seeds. Now come to shelter. Now we will read about shelter, that plants are also used as shelter. Shelter means रहने की जगह. प्लांट्स गिव शेल्टर टू मेनी वाइल्ड एनिमल्स। बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर जो होते हैं, उनको प्लांट्स शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, मतलब रहने की जगह देते हैं, घर देते हैं। वी सी मंकीज, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा लिविंग ऑन ट्रीज। हम देखते हैं कि मंकीज जो हैं या बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो पेड़ों पर रहते हैं। बर्ड्स जो हैं वो पेड़ों पर अपना नेस्ट बनाती हैं, घोंसला बनाती हैं। और जो जब बहुत गर्मियां होती हैं तो हम लोग भी पेड़ों के नीचे बैठकर आराम करते हैं, है ना। कई बार हमें बहुत धूप लगती होती है, हम पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, तो हमें भी पेड़ जो है वो क्या कर रहे हैं, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेश एयर। प्लांट्स हमें फ्रेश एयर भी देते हैं। प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, जो कि हम लोग यूज करते हैं ब्रीदिंग के लिए। All living beings like humans and animals need oxygen for breathing. जितने भी human beings हैं या living beings होते हैं, उन सभी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए। ऑक्सीजन इज ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग। प्लांट्स हेल्प टू मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश। और प्लांट्स जो हैं हमारे एयर को, एनवायरनमेंट को क्लीन और फ्रेश रखते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर गिवन बिलो, दिस इज द प्लांट विच नीड सनलाइट फॉर इट्स ग्रोथ। ये प्लांट है जिसको सनलाइट की जरूरत है इसकी ग्रोथ के लिए। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स अस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे। यहाँ ये बताया गया है कि प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यू कैन सी जो ये प्लांट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें क्या होता है, ह्यूमन बींग्स हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है ब्रीदिंग के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर निकाली वो प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, एंड प्लांट्स take this carbon dioxide and release oxygen for us, and we breathe in oxygen. So this is the process, and hence we get fresh and clean air from the plants. Now the next is food to animals. जो plants हैं वो animals के लिए food की तरह भी काम आते हैं, है ना। plants को animals जो हैं वो भी खाते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स। जिस तरह से प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह से एनिमल्स को भी फूड देते हैं। मेनी एनिमल्स लाइक डियर, रैबिट, काउ एंड बफेलो ईट लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे कि डियर, रैबिट, काउ एंड बफेलोज, ये सब क्या है, प्लांट्स के लीव्स को खाते हैं। नाउ लेट्स डू दिस एक्टिविटी। Yes, in column A, we have given some pictures. We have to match this with column B. First picture is of sugar cane. Sugar cane is a stem. So you will match it with
stem. Number 2 is carrot. Carrot is a root. So आप इसको root से match करेंगे. Number 2. Then number 3. What is this? You can we have just read it. This is ब्रोकली, राइट? तो ब्रोकली क्या होता है? फ्लावर होता है ना? पार्ट का फ्लावर का कौन सा पार्ट है प्लांट का? फ्लावर. सो नंबर 3 इससे आप मैच करेंगे. देन नेक्स्ट इज, ये क्या है? ग्राउंड नट है ना, मूंगफली. तो ग्राउंड नट जो है वो क्या होता है? एक सीड है. सो नंबर 4 पे आप सीड पे मैच करेंगे. देन नंबर 5 इज अ लेट्यूस. लेट्यूस क्या होती है? लीफ. एंड द लास्ट इज पपाया. This is a fruit. Papaya kya hai? Fruit. So these are matchups completed in your book. Now move to next page. Okay, now we have completed many uses of plants. Now we will read some other uses of plants. Let's read about it. Number 1, many plants have medicinal importance. बहुत सारे plants ऐसे हैं जो medicinal purpose के लिए use किए जाते हैं, जो हमें diseases से बचाने के लिए, cure करने के लिए हम use करते हैं. We use medicines made from many plants. हम ऐसी medicines को भी consume करते हैं, लेते हैं, खाते हैं जब बीमार होते हैं, जो plant से बनी होती हैं, जैसे कि एलोवेरा, तुलसी, neem and eucalyptus. You can see in this picture we have given some medicinal plants, neem, tulsi and aloe vera. Aloe vera जो होती है वो प्लांट जो है हमारी स्किन डिसीजेस को ठीक करने में हेल्प करती है. जो हमारी स्किन पे इन्फेक्शंस हो जाते हैं उनको ठीक करने के लिए एलोवेरा को यूज किया जाता है. और एलोवेरा को कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए भी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी एलोवेरा का यूज किया जाता है. नंबर 2 इज वी गेट फाइबर्स फ्रॉम द प्लांट्स. हमें प्लांट से क्या मिलते हैं? फाइबर्स मिलते हैं. ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि जूट, कोकोनट एंड कॉटन प्लांट्स. इनसे हमें क्या मिलते हैं? फाइबर्स. और इन फाइबर्स को यूज करते हैं हम क्लोथ्स बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए. रोप्स मीन्स रस्सियां. और भी बहुत सारी चीजें इन फाइबर्स को यूज करके बनाई जाती हैं. नेक्स्ट इज वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज लाइक बैम्बू, देवदार, शीशम. हम इन पेड़ों से क्या लेते हैं? वुड लेते हैं. ठीक है, मतलब लकड़ियां. इन लकड़ियों को यूज करके क्या बनाया जाता है? फर्नीचर्स, डोर्स एंड विंडोज. और वुड को एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है. And the next is pulp obtained from the wood of many trees like bamboo is used for making papers. और कई trees के जो pulp को यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए? पेपर्स बनाने के लिए, जैसे कि बैम्बू trees. Then next is dyes are made from plants like henna and indigo. जो कई ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि हिना और इंडिगो, इनसे डाई बनाया जाता है, कलर बनाए जाते हैं, जो कि हम हाथों पे हिना लगाते हैं, है ना, या हेयर में भी लगाते हैं, इंडिगो एंड हिना. नेक्स्ट पेज. resin and gum are obtained from the plants like pine trees and acacia trees. इस पॉइंट में क्या कहा गया है? रेजिन. रेजिन क्या होता है? रेजिन एंड गम, ये एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सा, जो ट्रीज से निकलता है. ये हमें कुछ प्लांट से मिलता है, जैसे कि पाइन ट्रीज. और एकेशिया क्या होता है? बबूल का पेड़. देन नेक्स्ट इज रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द रबर ट्री. रबर जो है वो किससे, कौन से ट्री से मिलता है हमें? रबर ट्री से. Flowers of rose, lily and jasmine are used for making perfumes. कुछ plants के flowers को use किया जाता है perfumes बनाने के लिए, जैसे कि rose, lily and jasmine. Dried leaves and other plant parts are used for making manure for plants. सूखी हुई पत्तियां और भी अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स को किस लिए यूज किया जाता है? मैन्योर बनाने के लिए, खाद बनाने के लिए, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है. We add manure to the soil to make plants growth better. हम soil में manure, खाद को मिलाते हैं ताकि उससे plant की growth जो है वो बहुत अच्छी हो. And the last point is flowers of many plants are used for decoration and for making bouquets. और कई plants के flowers को यूज किया जाता है किस लिए? डेकोरेशन करने के लिए या फिर बुके बनाने के लिए. बुके क्या होते हैं? गुलदस्ते बनाने के लिए. So this was your chapter about plants. I hope this is clear to all of you. Then please read this chapter at your home.
Thank you.